Good morning, students. Welcome back to the accountancy classes. So, we have already started our chapter number 2, that is Goodwill, Nature and Valuation. This is the third chapter of our book T.S. Kariwal. So, from our last class, we have covered all the theoretical topic related to this chapter. We have covered the meaning, the features, the factors affecting, right? So after that, today we are going to start with the theoretical numerical part. So let's start. So first of all, yesterday we have covered the meaning of goodwill. So let us revise. So goodwill is that intangible asset which help a firm to earn higher without the need of any such efforts, which led a firm to earn higher profits. So goodwill is that asset which help us to earn higher profits. So it also means that when a man pays for goodwill, he pays for something which places him in a position of being able to earn more than what he would be able to do by his own unaided efforts. So goodwill is that thing which help a firm to earn higher profit. Even if he would have made many efforts to earn profit, he would have contributed so much of efforts without the support of anyone, even then he would not be able to earn that much profits that goodwill help a firm to earn that profits. So today we are going to do our next topic, that is the types of goodwill. That is types of goodwill. We have two main types of goodwill. Number one is purchased goodwill. And second one is the self-generated goodwill. Purchased goodwill is that goodwill which we purchase. A goodwill that a firm acquire for a consideration. So consideration मतलब कि something in return. वो गुडविल जिससे फर्म जो परचेज करती है और उसके बदले में पेमेंट करती है, इट कैन बी इन कैश और काइंड, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल सपोज एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को खरीदा एंड उसके एसेट्स थे ₹10 लाख एंड उसके लायबिलिटीज हैं ₹9,50,000 और लायबिलिटीज can be 9,50,000. So we will find out the net assets. Net assets we get ₹50,000. But on purchasing this business, we have paid consideration of ₹80,000. So when a firm buys another firm, or when we purchases any firm, and we paid a consideration which is excess than the net assets, then the excess amount paid is the amount which a business pays for the goodwill, right? It means that अगर हमने कहीं से अपना कोई भी फर्म ने परचेजेस की हैं, कोई भी बिजनेस पर खरीदा है किसी ने, तो उसके एसेट्स माइनस लायबिलिटी, नेट एसेट्स जो हैं जितने बनते हैं और हम उससे भी ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो हम जितना एक्सेस पे कर रहे हैं, तो मतलब कि हमने गुडविल की अमाउंट, हमारी जो फर्म की जो रेपुटेशन की अमाउंट है उस बिज़नेस की, हमने उसकी अमाउंट पे की है.
तो जितना हम एक्सेस पे करते हैं उसे हम अकाउंट्स में कहते हैं दैट वी हैव पेड फॉर गुडविल, एंड दैट गुडविल इज नोन एज परचेज्ड गुडविल, राइट? So it always arises from the purchase of purchase of business. So this type of goodwill always arises from the purchase of business. And for this, if we purchasing any goodwill, then we are paying some consideration which can be in cash or in kind. So it is always shown, goodwill is an asset. So it is always shown in the balance sheet of a business enterprise. And it is that asset whose value is decided when both the buyer and the seller has agreed for a price. मतलब कि ये परचेज गुडविल है, ये सब वैल्यूएशन बायर और सेलर अपना एक एग्रीमेंट करता है कि आई विल पे यू दिस मच अमाउंट, आई विल पे यू दिस मच एक्स्ट्रा अमाउंट, बिकॉज दिस अमाउंट दैट आई एम पेइंग दैट इज़ द वैल्यू ऑफ गुडविल. सो जो इसकी वैल्यू है वो हमेशा हम बायर और सेलर अपनी जो एग्रीमेंट है उससे फिक्स करते हैं इसकी प्राइस को. सो जो इसकी वैल्यू है इट वेरी मच डिपेंड्स अपॉन द परचेजर. जो गुडविल, जो बिज़नेस को ख़रीद रहा है और गुडविल की वैल्यू पे कर रहा है, उसकी जो बिज़नेस से एक्सपेक्टेशन होंगी उसकी वो बिज़नेस मेरे फ्यूचर में कितना काम आएगा. ठीक है जी, उसने ये बिज़नेस ख़रीदा, उसने कहा कि मुझे तुम्हारी रेपुटेशन मेरा बिज़नेस में मेरे को इतना फ़ायदा कर सकती है कि ये मुझे आने वाले कई सालों में इतना अमाउंट मेरे को प्रॉफिट के रूप में दे सकती है. ठीक है जी, मैं ये गुडविल की पेमेंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे मुझे इतना बेनिफिट दिख रहा है. तो अगर परचेज़ करते समय परचेज़र को एक किसी भी बिज़नेस को परचेज़ करते हुए उसकी गुडविल बहुत ज़्यादा लग रही है, मतलब कि यानी कि उसे लग रहा है कि उसे ये वाला बिज़नेस फ्यूचर में बहुत बेनिफिट देगा, तो ही विल ऑलवेज पे हायर फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस एंड फॉर दैट पर्टिकुलर गुडविल. तो उस बिज़नेस की गुडविल की वैल्यूएशन ऑब्वियसली हायर होगी बिकॉज ही इज़ एक्सपेक्टिंग अ हायर रिटर्न फॉर द फ्यूचर प्रॉफिट्स in the form of future profits. But the second one is the self-generated goodwill, or we can say it is a non-purchased goodwill. वो गुडविल जो हम परचेज नहीं करते हैं. हमने बिजनेस शुरू किया, हमने लोगों को बहुत अच्छी सर्विस दी, हमने लोगों को प्रॉपरली एफर्ट्स, हमारी मैनेजमेंट, हमारी सर्विसेज इतनी अच्छी थी कि हमारी रेपुटेशन बननी शुरू हो गई. तो उस रेपुटेशन के बेस में हमारे पास कस्टमर आने लग गए, हमारी अपनी गुडविल बनी. तो जो अपने आप एक बिज़नेस अपने ही सफ़र के दौरान, अपनी ही लाइफ के दौरान जो गुडविल बनाता है उसे कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल. इट डिपेंड्स अपॉन लॉट मैनी ऑफ फैक्टर्स. कैसे फैक्टर्स? जैसे एक बहुत ही अच्छी फेवरेबल लोकेशन हो, एक अच्छी लोकेशन पे हमने अपना बिज़नेस सेटअप कर रखा है, लोग बहुत अफेक्टेड हैं, बहुत हमसे अट्रैक्ट होते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी ही बहुत अच्छी है कि हमारे पास कस्टमर वापस आता है. देन हमारी बहुत गुड सर्विसेज हैं, हम लोगों को बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं. तो हमें इन सिचुएशन में हमारा कस्टमर हमारे पास वापस आएगा और वो जो हमारी सर्विसेज हैं, जो हमारे पास वापस आ रहा है कस्टमर, उसे हम कहते हैं गुडविल. जितनी अच्छी हमारी ये सर्विसेज होंगी उतनी ही ज़्यादा हमारी अच्छी गुडविल होगी. सो इट इज़ ऑल डिपेंड अपॉन द एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट कि हम कितना अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, हमारी गुडविल कैसी है, हमारी रेपुटेशन कैसी है. वी नेवर पे एनी प्राइस टू अर्न दिस गुडविल.
हम इसके लिए कोई प्राइस नहीं पे करते, ये हमारी अपनी खुद की कमाई हुई गुडविल है. सो इट इज़ ऑल इंटरनली जनरेटेड गुडविल. ठीक है बच्चों, ये हमारी अपने आप अपनी लाइफ के दौरान अपने आप गुडविल बनती है. हम अच्छा सर्विस प्रोवाइड करेंगे, हम लोगों को अच्छा काम देंगे, अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, तो हमारी अपने आप रेपुटेशन बनेगी. सो इस गुडविल के लिए इसके लिए हमें कोई एविडेंस की नहीं ज़रूरत. जैसे इसको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास एविडेंस है, हमने इसे ख़रीदा है. अगर हमने ख़रीदा है, वी हैव पेड अ प्राइस, सो वी मस्ट हैव रिकॉर्डेड समवेयर दैट हमने कितनी अमाउंट रिकॉर्ड की है, हमने कितनी अमाउंट इस गुडविल को ख़रीदने के लिए पे की है. वी मस्ट हैव रिटन इट. सो हमें इसे रिकॉर्ड करने के लिए, अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए वी नीड एविडेंस. But this self-generated goodwill is never accounted as an asset. So ना ही ये हम अपने बुक्स में एसेट में मानते हैं. सो ये जो गुडविल है ये नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट. हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी भी अपनी बुक्स में नहीं रिकॉर्ड करते. हम अपने बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ परचेज्ड गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं. सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नेवर रिकॉर्डेड इन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट. सो अब हम इनके मेथड्स देखेंगे कि हमने अब अपनी बिजनेस अकाउंटेंसी में परचेज गुडविल की कैलकुलेशन करनी है कि हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे. इस गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए we will do the methods of valuation of goodwill. We will do next topic, that is the methods of valuation of goodwill. So we are having basically the three main methods. We are having basically the three main methods of valuation of a goodwill. So write it down. Methods of, dear students, please write it down in your notebooks. Methods of valuation of goodwill. We have three main methods of valuation of goodwill. सबसे पहले हमारे पास जो मेथड है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड. सेकेंड मेथड जो हमारे पास है बेटा वो है सुपर प्रॉफिट मेथड. एंड द थर्ड मेथड दैट वी हैव इज नोन एज द कैपिटलाइजेशन मेथड. Today we will cover average profit method. और एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी बेटा आपके पास टू आगे क्लासिफिकेशन है. फर्स्ट इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, एंड द सेकेंड वन इज द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. सो सिंपल एवरेज प्रॉफिट में बेटा हम क्या करते हैं, सबसे पहले एज द नेम सजेस्ट एवरेज निकालते हैं. हमने एवरेज निकालनी होती. सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले हम जो बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं, जितने बिजनेस ने जितने ईयर्स में, जितने हमारे पास ईयर्स हैं उतने ईयर्स में हम अपने बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करेंगे. जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हम जो भी हमारी एबनॉर्मल गेन्स हैं उन्हें डिडक्ट कर देते हैं और एबनॉर्मल लॉसेस हैं उन्हें हम ऐड बैक कर देते हैं हमारे प्रॉफिट्स में. सो
अब यहाँ पे हमने एक मेन लाइन पढ़ी है कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट में हम जब प्रॉफिट्स निकालते हैं तो हम एवरेज करते हैं हमारे प्रॉफिट्स। एवरेज कैसे निकलती है, जितने नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं हम टोटल प्रॉफिट्स को उतने नंबर ऑफ़ ईयर्स में डिवाइड कर देते हैं। सपोज वी आर गिवन द प्रॉफिट्स ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये हमारे प्रॉफिट्स हैं, ये प्रॉफिट हैं, ये प्रॉफिट है। हम इन तीनों का टोटल लगाएंगे और टोटल लगा के उसको 3 से डिवाइड करके उनका एवरेज निकाल देंगे। सो ये तो एक हमारा मेथड है टू कैलकुलेट दी एवरेज प्रॉफिट्स। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, हमारे जितने भी एबनॉर्मल गेन्स हैं उन्हें हम क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, और जो हमारे पास जो एबनॉर्मल लॉसेस हैं उन्हें हम ऐड कर देते हैं। एबनॉर्मल गेन्स को हम रिड्यूस कर देते हैं और एबनॉर्मल लॉसेस को हम ऐड बैक कर देते हैं। मतलब कि हम इसे समझते हैं, जैसे हमारे पास बेटा प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास कोई भी गेन हुआ है तो हम गेन इधर रिकॉर्ड करेंगे, इधर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो इधर आएगा, राइट। मतलब कि इधर वाली अमाउंट बड़ी है तो आखिर में हमारे पास नेट प्रॉफिट भी बढ़ गए। अब हमने कुछ भी ऐसे एबनॉर्मल गेन बिजनेस में रिकॉर्ड कर रखे हैं जो बिज़नेस के रिगार्डिंग नहीं है, एबनॉर्मल टू बिज़नेस है, यहाँ पे हमने उसको बीच में ऐड कर रखा है और नेट प्रॉफिट बढ़ा रखे। हमें अपने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने वक्त हमें अपने बुक्स को सही करना होता है। तो जो ये एबनॉर्मल हैं जो हमने ऐड कर रखे हैं जिससे हमारे प्रॉफिट्स बढ़ चुके हैं, हमें उन्हीं प्रॉफिट्स को कम करके करेक्ट पोजीशन पे लेके आना है, इसलिए हम एबनॉर्मल गेन्स को माइनस कर देंगे। ये क्या कर देंगे, गेन्स को माइनस कर देंगे। ये हमने गेन्स को माइनस कर दिया। फिर हमारे पास कुछ लॉसेस होते हैं बिजनेस में जिन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं यहाँ। जब हम अपने प्रॉफिट्स में से लॉसेस माइनस करते हैं तो हमारे प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। अब इनका कहने का मतलब है कि ये जो हमारे लॉसेस हैं ये हमारे बिजनेस के लॉसेस है ही नहीं, तो हमने इन्हें रिकॉर्ड क्यों कर रखा है, अगर ये हमारे बिजनेस के लॉस नहीं है तो यहाँ पे हम ओवरराइड तो नहीं कर सकते। नो, व्हाट वी कैन डू कि हमारे यहाँ पे पहले नेट प्रॉफिट्स लॉसेस के कारण कम हो चुके थे। अब हमें इसी लॉसेस को कवर करने के लिए हम अपने नेट प्रॉफिट्स को ऐड बैक कर देंगे विद एबनॉर्मल लॉसेस। फिर हमारी जो करेक्ट पोजीशन आएगी वो हमारी करेक्ट नेट प्रॉफिट्स की पोजीशन आ जाएगी। तो इस मेथड के हिसाब से हम एवरी ईयर जो भी एबनॉर्मल गेन होंगे उन्हें माइनस कर देंगे और एबनॉर्मल लॉसेस हैं उन्हें ऐड बैक कर देंगे। फिर सभी ईयर्स के ईयर वाइज हम प्रॉफिट्स को ऐड करके फिर उनको जितने नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं, यहाँ पे जैसे 3 हैं तो उनके जो टोटल होगा टोटल को उस नंबर ऑफ़ ईयर्स से डिवाइड करके एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, बाय दिस वे वी विल कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट्स। इसका रीज़न क्या है, हम ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमें अपनी बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक करेक्ट प्रॉफिट्स करेक्ट पोजीशन पे दिखाना होता है। तो हमें अपनी बिजनेस की बुक्स को करेक्ट पोजीशन पे दिखाना होता है। तो अगर हम एक क्वेश्चन देखें बच्चों, हमारे पास आप ही की बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है। बुक के अकॉर्डिंग 2018-19, 2017-18, 2016-17, 2015-16 एंड 2014-15, ये हमारे पास 5 साल दे रखे हैं और 5 साल के ही हमारे पास प्रॉफिट्स दे रखे हैं। ठीक है जी, प्रॉफिट्स रुपीस में होंगे तो यहाँ पे 8 लाख रुपीस, 15 लाख रुपीस, 18 लाख रुपीस, इस साल उसे लॉस हो गया 4 लाख रुपीस एंड 13 लाख रुपीस। ठीक है जी,
इन सभी के बेसिस पे हमें अपनी गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो गुडविल कैलकुलेट करने से पहले हम सबसे पहले अपने एवरेज प्रॉफिट्स निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेंगे? 5 साल के प्रॉफिट्स को हम टोटल कर देंगे। ठीक है जी, हम इन्हीं 5 साल के प्रॉफिट्स को टोटल कर देंगे। तो हमारे पास प्रॉफिट्स आएंगे 8 लाख, 15 लाख प्लस 18 लाख माइनस 4 लाख प्लस 13 लाख। तो हमारे पास नेट आ गए 50 लाख। 50 लाख को डिवाइड कर देंगे 5 ईयर से, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 ईयर्स का डाटाबेस है। हम 5 ईयर के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 लाख एवरेज प्रॉफिट। तो हमें कैलकुलेट करनी है गुडविल। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी? एवरेज प्रॉफिट इनटू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज, ईयर्स ऑफ परचेज। और आपके क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग आपके नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज जो दे रखे हैं वो हमारे पास 3 ईयर्स दे रखे हैं। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट हमारे पास 10 लाख आए थे इनटू ईयर ऑफ परचेज 3 है, और यहाँ पे हो गया ये 30 लाख। ये आपका आंसर है, ये है गुडविल। तो यहाँ पे हमने एक नया पॉइंट देखा कि हमें गुडविल कैलकुलेट करने वक्त एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज करना होता है। तो अब तो ये नया टर्म आ गया, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्या है भाई? तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किए थे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट से हमें गुडविल निकालने के लिए हम अपने एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज मतलब कि बेटा नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द फर्म इज लाइकली टू अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चेंजिंग इट ओनरशिप बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स पुट इन द पास्ट। यानी कि अगर एक फर्म को लगता है कि उसने अपने पास्ट में इतने एफर्ट्स किए थे कि हमें फ्यूचर में फर्म को इतना बेनिफिट मिलेगा कि हम इतने नंबर ऑफ ईयर्स गुडविल का बेनिफिट ले सकते हैं। मतलब कि बेटा अगर एक फर्म को लगता है कि मैंने एक फर्म में अपने पास्ट में इतने एफर्ट्स किए थे कि उसके बेसिस में मुझे अभी भी 5 ईयर्स मुझे अभी भी उसी एफर्ट्स के बेसिस पे रेगुलर हर साल मुझे इतना बेनिफिट मिल सकता है। मुझे रेगुलरली बेनिफिट मिल सकता है कि मुझे। तो अगर हम देखें, वो तो हमारा एक जर्नल है, तो अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो उसने एवरेज प्रॉफिट निकाले। उसने कहा कि एवरेजली तो मैं हर साल 10 लाख कमा रहा हूँ, किसी साल कम हो जाता है, किसी साल ज़्यादा भी हो जाता है। एवरेज उसका है कि 10 लाख तो मैं कमाता हूँ, एवरेज मेरा बन रहा है कि ओवरऑल एवरेज मेरा निकल रहा है। लेकिन गुडविल क्या है? ये गुडविल मुझे लगता है कि मेरे पास्ट में मैंने इतने एफर्ट्स किए कि मुझे आने वाले 3 साल और ऐसे मिल सकते हैं कि मैं एवरेज प्रॉफिट कमा पाऊँगा। मैं अपने पास्ट परफॉर्मेंस की बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि मेरा बिजनेस आगे 3 साल तक मुझे कमा के देगा। तो हम गुडविल को हमेशा कैसे कैलकुलेट करते हैं? इन्हीं एवरेज प्रॉफिट्स को नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जितना अमाउंट आता है उसे हम कहते हैं हमारे बिजनेस की गुडविल। ठीक है जी, उसे हम कहते हैं हमारे बिजनेस की गुडविल। सो दिस मच इज एनफ फॉर टुडे। Tomorrow we will continue this. So see you tomorrow. Thank you.